My name is Fareed. Fareed is an Arabic word which means unique. I hope you all are really doing well and having an amazing day. So काफ़ी समय के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं लॉन्ग वीडियोस बनाऊं, तो मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि शॉर्ट्स के साथ रील्स के साथ में लॉन्ग वीडियोस भी आप तक पहुंचाऊं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं सिंपल लैंग्वेज में जो मुझे इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज है आप सबको कन्वे करूं, आप सबको डिलीवर करूं। तो मेरी आज की जो वीडियो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टॉक्स अबाउट दोस एक्शंस और इवेंट दैट स्टार्टेड इन द पास्ट बट इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट। तो आसान लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उन एक्शंस के बारे में बात करता है, उन इवेंट्स के बारे में बात करता है जो कि पास्ट में शुरू हुए थे लेकिन अभी भी चल रहे हैं। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? क्योंकि आप किसी भी टेंस की जब स्टडी करते हो तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको हर एक टेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जब आपको टेंस का नॉलेज होता है, टेंस के स्ट्रक्चर्स का नॉलेज होता है, तो आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हो, फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हो। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? Subject plus will have been plus V1 plus ing plus object. So इसका जो स्ट्रक्चर है वो subject plus will have been। तो यहाँ पे जो future perfect continuous tense की जो helping verb है, you can see on the screen also, the helping verb is will have plus been plus V1 plus ing। तो जहां पे भी कंटिन्यूअस टेंस आता है, कंटिन्यूअस वर्ड किसी भी टेंस के साथ आता है, तो हम कंटिन्यूअस के साथ ing एड करते ही करते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाई है। सो आई विल रीड आउट लाउड फॉर यू गाइज। Once again, the future perfect continuous tense is a verb tense that is used to describe an action that will have been in progress for a certain period of time before a specific time in the future. It is formed with the auxiliary verb will followed by the past participle of the verb to have and the present participle of the main verb. So now we will see some of the sentences of future perfect continuous tense. ऐसा काम जो कि past में शुरू हुआ लेकिन अभी भी चल रहा है। So here we have some sentences based on future perfect continuous tense. First one is, I will have been working on this project for 6 months by the time it is finished. Second one is, she will have been studying for her exam for 3 weeks by the time they start. Third one is, we will have been saving for the house for 2 years by the time we have enough money. Fourth one is, they will have been traveling the world for a year by the time they come back. तो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करी, यहाँ पे हम जितने भी सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसमें एक चीज कॉमन है कि वहां पे हम will have been का यूज कर रहे हैं and verb plus ing. Okay, now let's move to fifth sentence. The baby will have been crying for an hour by the time you get here. Sixth one is, the fire will have been burning for 2 hours by the time the firefighters arrive. Seventh one is, the dog will have been chasing the tail for 5 minutes by the time you stop it. Eighth one is, the teacher will have been talking for an hour by the time the students get restless. Ninth one is, the train will have been delayed for 2 hours by the time it arrives. The meeting will have been going on for 3 hours by the time it is over. 11th one is, I will have been learning to play the piano for 5 years by the time I give my first recital. तो यहाँ पे आप जितने भी sentences को notice करेंगे, इन सारी sentences के अंदर
हम विल हैव बीन का यूज कर रहे हैं एज एन हेल्पिंग वर्ब। कुछ और सेंटेंसेस हैं यहाँ पे फ्रॉम 16। I will have been using my mobile phone 2 hours. मैं पिछले 2 घंटे से अपना मोबाइल फोन चला रहा हूँ। तो ये काम पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी भी चल रहा है। 17th one which we have is we will have been studying in school till 2028. Okay, तो हम स्कूल में 2028 तक पढ़ते रहेंगे। 18th one is they will have been working on this project for 9 months. वो इस प्रोजेक्ट पे 9 महीने तक काम करते रहेंगे। She will have been sleeping for an hour. 20. I will have been completing my home decor for 3 hours. He will have been singing for 2 hours. 22. Sonakshi will have learning on AI exam for 2 hours. She will have been taking care of plants for 6 months. 24th is I will have been working when you will come home for dinner. And the last and final 25th is I will have been designing model of the house for 3 months. तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में समझाया कि ऐसा काम जो कि पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी भी चल रहा है और फ्यूचर में भी चलता रहेगा, डिपेंड ऑन योर कॉन्टेक्स्ट। मैंने आपको उसका स्ट्रक्चर भी बताया, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीइंग प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो जितने भी टेंसेस होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा तभी आप सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर पाओगे। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज का आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दूं, जितना मुझे पता है उसको मैं सिंपल तरीके से आप लोगों तक पहुंचाऊं। इंग्लिश आज के जमाने में सबको आना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, एक ग्लोबल लिंग्वा फ्रैंका है एंड इंग्लिश इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू नो अबाउट इंग्लिश एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, क्योंकि आप कहीं पे भी जाते हो, आप किसी जॉब को भी ज्वाइन करते हो तो उनके क्राइटेरिया में ये मेंशन होता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होना चाहिए एंड यू शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो क्लाइंट्स होते हैं वो बाहर के होते हैं, फॉरेन कंट्रीज के होते हैं, तो इसीलिए इस लैंग्वेज का आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और कहीं भी चले जाएं XYZ इंग्लिश आपको मिलेगी ही मिलेगी। जब आप अपने मोबाइल फोन को भी एक्सप्लोर करते हो तो उसमें भी जो सेटिंग्स होती हैं, जो एप्स होते हैं, वो सभी इंग्लिश के अंदर है। तो इसके साथ कंफर्टेबल होना, इसको कंफर्टेबली तरीके से बोलना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं कोशिश करूंगा कि आई विल गिव यू knowledge about English language. I will make you provide simple things about English language and यही मेरी कोशिश रहेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन देगा टू क्रिएट मोर एंड मोर वीडियोस रिगार्डिंग English language. So thank you so much. Bye bye and see you in